اس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے، اور اگر اس پہ توجہ دی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مدر آف آل انڈسٹریز ہے، کیونکہ تمام انڈسٹریز کو کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہاں سے لوکلی ہمارے لوکل انڈسٹریز کیمیکلز دینا شروع کر دیں تو ہمارے جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہے جو کہ ایکسپورٹ کرتی ہے وہ جو ہے کافی فائدے میں رہ جائے گی اس سے۔ ہماری اہم برآمدی مصنوعات الیکٹرانک سامان ہوا کرتی تھیں، لیکن اب نیو انرجی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں۔ چونگچنگ نے چین میں نیو انرجی سے چلنے والی گاڑیوں کی صنعت میں برتری حاصل کی ہے۔ ایگریکلچر کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھائیں گے تو 8 سے 10 ارب ڈالر کا تو امپورٹ بل ہی کٹ ہو جائے گا آپ کا۔ ناظرین محترم السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ کیمیکلز تمام صنعتوں اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے انتہائی اہم ہیں، جبکہ پاکستان میں کیمیکلز زیادہ تر درآمدات پر انحصار کرتے ہیں اور اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کیمیکل سیکٹر وہ سیکٹر ہے جس میں جو ہے تقریباً ہر 100 میں سے تقریباً ہر 10 میں سے 4 امپلائیز جو ہیں مطلب ہے 4 امپلائیز کے لیے جنریشن ہوتی ہے۔ اگر 10 امپلائمنٹ نکلتی ہیں تو اس میں سے 4 کی جو ہے وہ کیمیکل سیکٹر سے نکلتی ہے۔ اس کی موجودہ وجہ یہ ہے کہ یہ سیکٹر وسیع سیکٹر ہے، یہ ٹیکسٹائل، ڈائز اور بہت سے دوسرے ایکسپورٹ اورینٹڈ چیزوں پر مشتمل ہے۔ اپنی اہمیت کے باوجود پاکستان میں کیمیکل سیکٹر کا ابھی تک صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا ہے۔ اس وقت کیمیکل انڈسٹری میں خام مال کی کمی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے سیکٹرز کو مسائل کا سامنا ہے، جن میں پاکستان کے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ٹیکسٹائل اور لیدر شامل ہیں۔ بڑھ جائے گی، کیونکہ جو کیمیکلز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں کافی مہنگے داموں ملتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی جو انڈسٹریز کے پروڈکشنز ہے وہ بھی میٹیریل کا کاسٹ جو ہے اور جو فنیشنگ پروڈکٹس ہے ان کی کاسٹ کی قیمت اسی لحاظ سے بڑھ جاتی ہے، تو اسے لوکل جو پروڈکشن آف دا کیمیکل ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بدقسمتی سے اس سیکٹر کو پہ توجہ نہیں دی گئی ہے، اور پاکستان میں جتنی بھی ہمارے کیمیکل انڈسٹریز ہے جو 3-4 ہی ہے جو کہ یہ کیمیکلز اس وقت پروڈیوس کر رہی ہے، تو ان کی بھی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے، زیادہ تر وہ امپورٹ پہ رلائی کرتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے کیمیکل مینوفیکچرنگ فیسلٹی جو ہے اس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے، اور اگر اس پہ توجہ دی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مدر آف آل انڈسٹریز ہے، کیونکہ تمام انڈسٹریز کو کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہاں سے لوکلی ہمارے لوکل انڈسٹریز کیمیکلز دینا شروع کر دیں تو ہمارے جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہے جو کہ ایکسپورٹ کرتی ہے وہ جو ہے کافی فائدے میں رہ جائے گی اس سے۔ کیمیکل انڈسٹری بہت زیادہ مہارت کی طلب کرتی ہے، جبکہ پاکستانی گریجویٹس کا اس صنعت سے بہت کم تعامل ہوتا ہے۔ ہنرمند افراد کی کمی کا مسئلہ اس شعبے میں صنعت اور عالمی تعاون کو مضبوط بنا کر حل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایکیڈمیا اور جو انڈسٹری کے جو لنکیجز ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور گورنمنٹ کو اس کے لیے انسینٹیوز دینی چاہیے کہ جو پرائیویٹ انڈسٹریز ہے وہ اس میں اپنا رول پلے کرے۔ جیسے اس وقت بہت ساری پرائیویٹ انڈسٹریز چائنا میں یا یو ایس میں یا یورپ میں جو ہے وہ کیمیکل پروڈیوس کر رہی ہے، تو اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹرز جن کے پاس تھوڑا کیپٹل ہے وہ اگر ایکیڈیمیا کے ساتھ مل کے کولیبریشن کر لے تو اس سے یہ انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اکیڈمی اس پہ بہتر طریقے سے صنعت کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، اور لوگ اس کے متعلق معلومات ہوتی ہے تو لوگ اس پہ جو ہے انڈسٹری ہے اس پہ ورک کرتے ہیں، اور جب معلومات نہیں ہوتی تو آدمی اس پہ کیا اپنی وہ انڈسٹری لگائے۔ جب معلومات اکیڈمک کے ذریعے لوگ آئیں گے، آگے آئیں گی، نئی جنریشن آئے گی تو اس پہ جو بھی وہ اس پہ کام کرے گی تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل، ہمارا جو اپنا انسٹیٹیوٹ ہے ایچیجے ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ جو ہے اس پارٹ آف دا ورلڈ میں ون آف دا بیسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے کیمیکلز کے اس میں،
تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہے جو کہ کیمیکل پروڈکشن کے لیے یوز ہو سکتی ہے. اس میں جو کمی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کی ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس میں دلچسپی ظاہر کرے اور وہ اس میں انویسٹمنٹ کر لے تو ہمارے ادارے سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور اس میں گریٹ پوٹینشیل ہے. وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو اس انڈسٹری کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس کو پروگریسو بنانے میں ہیلپ دے سکتی ہیں. پچھلے سال چین کی کیمیکل انڈسٹری نے 2022 میں سرمایہ کاری اور برآمدات کے لحاظ سے زبردست توسیع دیکھی. آپ کے خیال میں چین سے کون سا تجربہ یا ٹیکنالوجی سیکھی جا سکتی ہے؟ چین نے جو سب سے زیادہ توجہ کیمیکلز میں دی تھی وہ کریکنگ انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ پہ دی. یہی انڈسٹری ہے جو کہ کیمیکل کو بناتی ہے. یا جیسے ہم مثلا صابن بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیمیکل چاہیے. ہم جو ہے کپڑوں میں کو رنگ دیتے ہیں یا جو ہے لیدر کو رنگ دیتے ہیں, ان کے لیے ہمیں کیمیکل چاہیے. اسی طریقے سے کپڑوں کو پروسیسنگ کے لیے کاٹن کے لیے وہ چاہے سیمنٹ انڈسٹری کے لیے کیمیکل چاہیے. یہ جو تمام کیمیکلز ہیں یہ آپ کریکنگ انڈسٹری سے آپ بنا سکتے ہیں اور چائنا وسیع پیمانے پہ بنا رہی ہے. کریکنگ انڈسٹریز انہوں نے لگائی ہے اور تمام جو دنیا ہے اس میں وہ بیچ رہی ہے. تو ہمیں جو ہے چائنا کے ساتھ جو ہے کریکنگ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے میں تعاون کرنا, ان مل کے کولیبریشن کرنی چاہیے تاکہ ہم پاکستان میں اپنی کریکنگ انڈسٹری ڈیولپ کر سکے. ہمارے پاس را میٹیریل موجود ہے. اس سال کے شروع میں پاکستان کیمیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان کیمیکل ایکسپو 2023 لاہور میں منعقد ہوئی, جس میں کیمیکل انڈسٹری میں سرمایہ کاری اور تجارتی امکانات کو اجاگر کیا گیا. پاکستان کیمیکل انڈسٹری کا روشن مستقبل دیکھنا باقی ہے. ناظرین, اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیمیکل لنکرز پاکستان بیجنگ آفس کے چیف نمائندے جناب عامر قیصر صاحب. جی جناب, تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی کیمیکل سیکٹر کو سی پیک یا چین کے تعاون سے فائدہ اٹھایا ہے؟ سی پیک سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے. ابھی کیمیکل سیکٹر میں ابھی شروع نہیں ہوا. کیمیکل سیکٹر میں شروع ہوگا جب ہمارے انڈسٹریل زون بنے گے. جو ہمارا جو سی پیک ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیمیکل انڈسٹریل زون ہے. جو مین ہمارے 4 بڑے انڈسٹریل زون بننے ہیں اس میں کیمیکل انڈسٹری کی الگ جگہ رکھی ہوئی ہے. تو اس میں جب یہ انڈسٹری لگنا شروع ہوگی, کیمیکل انڈسٹری لگنا شروع ہوگی, تو اس وقت پاکستان کو زیادہ بینیفٹ ہوگا کیونکہ را مٹیریل ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کیمیکلز کا. اچھا, اب یہ جو 4 بڑے انڈسٹریل زون ہیں پاکستان میں جو سی پیک کے تحت بننے ہیں, اس میں جو مین بیسک انڈسٹری ہے اس کے جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ وہاں بنیں گے. تو پھر بینیفٹ ہوگا اور وہاں سے کیمیکل ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. گزشتہ سال پاکستان کے کئی مقامات پر سیلاب آیا تھا اور امدادی سامان کی کمی تھی. یہ صورتحال جانے کے بعد چینی شہر چونگچنگ نے امدادی سامان کی ایک کھیپ جمع کی اور زمینی سمندری انٹر ماڈل ٹرین کے ذریعے پاکستان روانہ کی. آئیے تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں. نیو ویسٹرن لینڈ سی کوریڈور چین کے مغربی اندرونی علاقوں سے گزرتا ہے. یہ شمال میں سلک روڈ اکنامک بیلٹ اور جنوب میں 21ویں صدی کی میری ٹائم سلک روڈ کے ساتھ ساتھ چائنا یورپ ریلوے ایکسپریس سے منسلک ہے. نتیجے کے طور پر یہ مغربی چین کے اندرونی علاقوں کو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن یعنی آسیان اور اس سے آگے تک پہنچنے کی اجازت دیتا ہے, جو خود کو یوریشین عالمی سپلائی چین کے مرکز کو جوڑنے والی ایک بڑی نقل و حمل کی شریان اور تعاون کے پل کے طور پر کام کرتا ہے. یہ کوریڈور ایک نیا بین الاقوامی زمینی سمندری راستہ ہے جو اپنے تجارتی راستوں کو بین الاقوامی بنانے کے لیے چین کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے. نئی بین الاقوامی زمینی سمندری تجارتی راہداری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پاکستان کے شاندار اونی قالین اور جنوب مشرقی ایشیا کے ٹراپیکل پھلوں نے چین کی منڈی میں اپنا راستہ تلاش کر لیا ہے. ٹرینوں اور بحری جہازوں کے ذریعے موٹر ٹرانسپورٹ کی سہولت کی بدولت دریں اثنا چین کے عالمی شہرت یافتہ پکوان بشمول چونگچنگ کی سیچوان کالی مرچ اور ہاٹ پاٹ سیزننگ، کوانگسی کے گونگے کے نوڈلز اور یہاں تک کہ ماحول دوست آٹو موبائلز نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کے لیے وسیع پہاڑوں اور سمندروں کو عبور کیا ہے. ہماری اہم برآمدی مصنوعات الیکٹرانک سامان ہوا کرتی تھیں، لیکن اب نیو انرجی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں.
चोंगचिंग ने चीन में न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की सनत में बढ़तरी हासिल की है, बल्कि यहाँ तक कि आलमी सतह पर भी एक अहम मकाम बनाया है। ये वो ख़ास बात है जिसे चीन के सनती इनकलाब के नए दौर में मनाया जाना चाहिए। चेंडू चोंगचिंग इकोनॉमिक सर्कल में सनतें एक दूसरे की कमी को पूरा करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। चिंगान ऑटोमोबाइल हर साल इंटेलिजेंट और न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों के कई नए मॉडल मुतारिफ कराती है, जिन्हें चेंडू से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मैदान में ताउन की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल हमारे पास 250 से ज़ायद सप्लायर्स चेंडू चोंगचिंग खत्ते में मौजूद हैं, जिनकी सालाना प्रोक्योरमेंट की मालियत 25 बिलियन RMB से ज़्यादा है। 11 दिसंबर 2022 तक दस्तयाब ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक न्यू वेस्टर्न लैंड सी कॉरिडोर की रेल सी इंटर मॉडल ट्रेनों ने 8,345 ट्रेनें चलाई हैं, जो साल ब साल 45% इजाफे की नुमाइंदगी करती हैं। ये ट्रेनें 17 चीनी सूबों, खुद मुख्तार इलाकों और म्यूनिसिपैलिटियों से होती हुई 60 शहरों से गुजरती हैं और 113 स्टेशनों पर रुकती हैं। मजीद बरआं इनके पास तमाम 12 मगरबी सूबों की मुकम्मल कवरेज है, जो दुनिया भर के 113 ममालिक और खित्तों में 338 बंदरगाहों तक पहुंचती हैं। बेल्ट एंड रोड और यांगसी दरिया की इक्तिसादी पट्टी के संगम पर इसके फायदेमंद मुकाम के साथ साथ न्यू वेस्टर्न लैंड सी कॉरिडोर के आगाज करने वालों में से एक होने की वजह से चोंगचिंग को अहम किरदार सौंपा गया है। वेस्टर्न लैंड सी न्यू कॉरिडोर के निफाज के मंसूबे का लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मरकज। गुज़श्ता साल सितंबर में पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाके तबाहकुन सैलाब की जद में आए थे और अहम आफात से मुतल्लिका इमदादी सामान की कमी थी। इस सूरत हाल का सुनकर चोंगचिंग ने 1 मिलियन युआन से ज्यादा मालियत का इमदादी सामान जमा किया, जिसमें काटन के खेमे, स्लीपिंग बैग और इमरजेंसी रोशनी के आलात शामिल थे। इसके बाद ये सामान लैंड सी न्यू कॉरिडोर के जरिए रेल सी इंटर मॉडल ट्रेन खिदमात के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाया गया। इस साल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जिसकी वजह से तकरीबन $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी हुई है और 3,000 से ज्यादा ताउन के मंसूबे बनाए गए हैं। इसके नतीजे में इसने 4,20,000 मुलाजमतों के मौके फराहम किए हैं। PRI के साथ वाले ममालिक में 40 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है। नई बैनुल-अक़वामी ज़मीनी समुद्री राहदारी इस इक़दाम का एक लाज़मी हिस्सा है, जो कौमों को जोड़ता है और ताउन को फ़रोग़ देता है। चोंगचिंग में तरक्की की कोशिशें मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। चीन के तरक्की के मौके और फ़वाइद में शरीक होने के लिए दूसरे ममालिक का खैर मकदम करते हैं। दरियाए यांगसी जिंगकांगतू पंपिंग स्टेशन, जहां अब हम हैं, और दरियाए जियालिंग साउचे पंपिंग स्टेशन मगरबी चोंगचिंग के पूरे 11 अजला और काउंटियों को घरेलू और सनती पानी फराहम करता है। इसके अलावा ये मगरबी चोंगचिंग में पानी के मयार को बेहतर बनाने, ज़राई आबपाशी के पानी को मोड़ने और आखिर में पानी की फराहमी का पैटर्न तश्कील देने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें दरियाए यांगसी और दरियाए जियालिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीछवान और चोंगचिंग में 81 सरहदी दरियाओं और झीलों ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। इसके अलावा नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत सीछवान और चोंगचिंग में तमाम 25 बैनुल-अक़वामी सेक्शंस का पानी बेहतरीन मेयार का है। लिहाजा हमने इस सिलसिले में दरियाए यांगसी के बलाई इलाकों में मुश्तरका तौर पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। इस अमल के दौरान हमने चेंडू चोंगचिंग इक़्तिसादी दायरे की ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ाने और इंसानों और फितरत की बाहमी बका को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया है। बहुत से नौजवान अपने आबाई इलाकों में होने वाली तरक्याती तब्दीलियों से मरऊब होकर इन इलाकों में वापस आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे गांव में होने वाली तरक्की ने दूसरे इलाकों में रहने वाले लोगों को ये तरगीब दी है कि वो हमारे इलाके में नए घर बनाएं और यहाँ रिहाइश इख्तियार करें। बैरूनी वसाइल और फंड्स मिलने से हमारे इलाके में देही बहाली की कोशिशों को फ़रोग मिला है। मेरे वालिद ने चोंगचिंग में लॉन्गमैन ओल्ड स्ट्रीट बनाई और मैं तब से उनसे सीख रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे चोंगचिंग में रहते हुए 6 साल हो गए हैं और ये मुझे यहाँ बहुत पसंद है। चाहे मकामी लोग हों, खाने पीने की अशिया हों या सकाफत, मैं यहाँ की हर शय से लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ। जहाँ तक हम जानते हैं, चोंगचिंग में ब्लॉकचेन के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही पाई जाती है। सनती इंटरनेट के मैदान में इसका मुस्तकबिल उम्मीद अफजा है। हमने चेंगडू में एक नया फार्मास्यूटिकल लॉजिस्टिक्स सेंटर बनाया है, जिसका मकसद योशिन-ओ यानी चोंगचिंग, संक्यांग, यूरोप
चीन यूरोप फ्रेट ट्रेन को अद्वियात की दरामद के लिए मुकम्मल इस्तेमाल करना है। मंसूबे के मुताबिक 2025 तक नए मगरबी जमीनी समुद्री राहदारी के जरिए चोंगचिंग की कंटेनर ट्रांसपोर्ट का हुजम 3 लाख TEU तक पहुंच जाएगा और इंटर मॉडल फ्रीट ट्रेन, बैनुल-अक़वामी रेलवे इंटर मॉडल ट्रेन और सरहद पार सड़क बस की नकलो हमल की सालाना शरह नमू 15% से तजावज कर जाएगी। नई मगरबी जमीनी समुद्री राहदारी रास्ते के साथ वाले खित्तों की मुआशी शरियान बन चुकी है और ये मुस्तकबिल में बेल्ट एंड रोड इक़दाम के तहत तावन और तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता रहेगा। हाल ही में ब्राज़ील की हुकूमत की तरफ से बताया गया कि चीन और ब्राज़ील के माबेन एक मुआहिदा तय पाया है, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक अमरीकी डॉलर को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि तिजारती अदायगी अपनी अपनी करेंसी में करेंगे। RMB यूरो को पीछे छोड़कर ब्राज़ील की दूसरी बड़ी बैनुल-अक़वामी रिजर्व करेंसी बन गई है। पाकिस्तान का भी चीन के साथ ऐसा ही मुआहिदा है। RMB से अदायगी चीनी और पाकिस्तानी कारोबारी व मालियाती इदारों की जानिब से सरहद पार लेन देन के लिए RMB के इस्तेमाल के लिए साजगार है, जिससे बाहमी तिजारत और सरमायाकारी की सहूलत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। इस साल के आगाज से फेडरल रिजर्व ने आलमी मंडी की तवक्कुआत से बढ़कर पॉलिसियां सख्त की हैं और होशरुबा तौर पर शरह सूद में इजाफा किया है। इसके नतीजे में अमरीकी डॉलर की मार्केट में सरमाए की नुमायां आमद हुई है, जिसकी वजह से आलमी मालियाती मंडियों में बदतरीन उतार चढ़ाव और शरह मुबादला में गैर मामूली तब्दीलियां आई हैं। इसके नतीजे में बहुत से ममालिक ने महंगाई का सामना किया है, जबकि कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। अभी जो आपका डॉलर का बुरान आया है, तो आपके अपने बैंकों ने, आपके अपनी ब्लैक मनी ने, आपके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट ने डॉलर का ये बुरान इतना पैदा कर दिया, जिसने पूरी मुल्क की मईशत को एक प्रॉब्लम में डाला हुआ है। इस साल मार्च में पाकिस्तान की कलील मुद्दती अफराते ज़र की शरह, जिसकी पैमाइश हसास कीमत के इशारिये SPI से की जाती है, साल ब साल 46.65% बढ़ गई, जिसने एक नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। एक ही वक्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में साल ब साल 35.37% का इजाफा हुआ। हमारी फूड इन्फ्लेशन यानी कि आप समझिए 47% पर है। हमारी दूसरी इन्फ्लेशन जो है वो ऑन दी एवरेज पहले जो माह का डेटा आया है 7-8 माह का, वो तकरीबन 27% पे है और ईयर ऑन ईयर पिछले माह 35% पे बढ़ी। ये तशवीशनाक इसलिए है कि ये हिट करता है लो इनकम अर्नर्स को। जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा तो आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। अगर आपकी इन्फ्लेशन 34 से 40% के पास चली जाए और आपका इंटरेस्ट रेट जो कायबार रेट है वो 21% हो जाए और आपके मुल्क की करेंसी डिवैल्यू होती जाए, तो हम शायद उस तरह से अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला सकेंगे और उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आपकी इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोज़गारी होगी। तो हमें बहुत सीरियसली इक़दाम करने होंगे और दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। कीमतों में नुमाया इजाफे ने सप्लाई चेन को मुतासर किया है। पाकिस्तान की सनत को सप्लाई चेन में रुकावटों और दरामदात मुतासर होने की वजह से नुकसान पहुंचा है, जिसमें बड़ी तादाद में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स में कमी आ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि सनती शोबे का एक सतून है, की बरामदात में भी नुमाया कमी देखी जा रही है। रवा माली साल के पहले 9 महीनों में टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात में सालाना बुनियादों पर 12.42% की कमी वाक़ई हुई है। बिजली और तेल की कीमतें बढ़ाई हुई हैं, सरय सूद बढ़ाया हुआ है, ज़मीन की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये सारा उससे मिलके और फिर सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है। आपको सिंगल डिजिट पे लाना पड़ेगा, 8-9% पे लाएंगे तो इन फॉरेन इन्वेस्टर को भी और लोकल इन्वेस्टर को भी इंसेंटिव बनेगा ना, कि जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर में नहीं बढ़ाएंगे, ना आप अपने लोगों को फीड कर सकते हैं और ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें अपनी एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो को ठीक करने के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो 15% पर है, चाइना में वो 30 से 35% पे है। तो एग्रीकल्चर की जो पैदावारी सलाहियत है वो बढ़ाएंगे तो 8 से 10 अरब डॉलर का तो इंपोर्ट बिल ही कट हो जाएगा आपका। 5 बरआज़मों में फैले ब्राज़ील, मलेशिया, घाना, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया पहले ही बैनुल-अक़वामी तजारती तस्वीर में करेंसी के मुतबादल की तलाश में आलमी मईशत पर अमरीकी डॉलर के उतार चढ़ाव के असरात को कम करने की कोशिशों में हैं।
क्या पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है? जी देखें, बिल्कुल ऑप्शंस हैं। हम बार्टर ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, हम किसी और करेंसी में कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट समझने वाला है, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कहाँ से आएंगे, हमारे पास अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर कोई और करेंसी आएगी ना। तो बात तो ये कि हमारी तो एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, ज़र मुबादला तो हम बाहर भेजते जा रहे हैं। दर हकीकत पाकिस्तान के चीन के साथ भी ऐसे ही मुआहदे हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2011 में दो तरफा करेंसी के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चीनी युआन को पाक चीन तजारत में सेटलमेंट करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 2022 में पाकिस्तान में RMB क्लियरिंग का सिस्टम कायम करने के लिए एक ताउन की यादाश्त पर दस्तखत किए थे। ये चीन और पाकिस्तान दोनों में कारोबारी इदारों और मालियाती इदारों को दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में सहूलत फराहम करते हुए युआन में सरहद पार लेन देन करने की इजाजत देता है। हालिया बरसों में चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम में मुसलसल इजाफा हुआ है और हमारा इक्तसादी ताउन तेज़ी से बढ़ा है, जबकि RMB की इंटरनेशनलाइजेशन मुसलसल बढ़ी है और सरहद पार RMB के कारोबार में तेज़ी से तरक्की हुई है। चीन की जानिब से RMB में बैनुल-अक़वामी तिजारत का मकसद लेन देन की लागत को कम करना, शरह मुबादला के ख़तरात को कम करना और RMB में मालियाती लेन देन की तादाद को बढ़ाकर इसके आलमी इस्तेमाल को तेज़ करने में मदद करना है, ख़ास तौर पर इसके बड़े तिजारती शराकतदारों जैसा कि पाकिस्तान वगैरह के साथ, जो कि चीन का सदाबहार स्ट्रेटजिक पार्टनर है। आदादोशुमार के मुताबिक आलमी ज़र मुबादला के कुल ज़खायर तकरीबन $12 ट्रिलियन हैं, जिसमें अमरीकी डॉलर का 58.36% हिस्सा है। यह आदादोशुमार कई दहाइयों में अपनी कम तरीन सतह पर है और ये अपने अरूज से 27% कम है। आलमी मुआशी निज़ाम बतदरीज बदल रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की बजाय खो दी है। इससे मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी पैदावारी सलाहियत जो है, वो कॉटन में फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 टन्स पर हेक्टर कॉटन उगाते हैं, चाइना 9 टन्स पर हेक्टर कॉटन उगाता है। सो आप इससे अस्यूम कर सकते हैं उसने अपनी पैदावारी सलाहियत मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाई। मैन्युफैक्चरिंग में कैसे बढ़ाई? हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप की। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अपना GDP का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो कहीं 16 से 20% था, आज 12.4% रह गया। ये है कि अपनी मईशत को इतना कर लें कि अगलों को आपके पैसे चाहिए और अपने लोगों को इतनी स्किल्स दे दें और वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हों और फिर उनको इजाज़त देंगे जी जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं और जितना ज़्यादा दुनिया को बेच लें तो आप बराबर आ जाएंगे दुनिया के उस बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिहाज से। हमने बहुत प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की। आपकी SOEs लॉस मेकिंग है, या तो उनको चलाइए चाइना की तरह कि पब्लिक सेक्टर में ही चलाना है, फिर एक्सपर्टीज़ ला के चलाइए, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान में मुमकिन है। PIA, रेल लिंक्स, इनको प्राइवेटाइज़ कीजिए और एडवांटेज उठाइए कमर्शियल ओरिएंटेड एफिशिएंसी का, ताकि हम कंपेटिटिव इंडस्ट्री को चला सकें। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।